Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Shahid Hussain, and today we are going to discuss a very important topic, and that is what is elaboration in the elaboration likelihood model. Elaboration likelihood model के जब हम बात करते हैं तो उसमें तीन important variables हैं, जिसमें सबसे पहला जो वेरिएबल है वो एलैबोरेशन है, उसके बाद फिर एक सेंट्रल रूट और फिर पेरिफेरल रूट। ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल के। Though I have discussed elaboration likelihood model earlier, but now we are going to discuss these three important aspects of elaboration likelihood model one by one. तो सबसे पहले आज we will be discussing what is elaboration। कि जब हम बात करते हैं elaboration likelihood model की तो इसमें elaboration से क्या मुराद है, elaboration के क्या aspects हैं या कि कौन कौन से important जो है इसके variables हैं elaboration के। And then in our next two videos we will be discussing the two routes to persuasion, जो कि central route और peripheral route की elaboration likelihood model बात करता है। तो we will be discussing in next two sessions inshallah. So when we talk about elaboration likelihood model, तो हम इस मॉडल का जो पूरा नाम है that is the elaboration likelihood model of persuasion. Basically this is a model of persuasion, and this is a model which tells us that how attitudes and behaviors are affected through communication. तो persuasion को जब तक नहीं समझेंगे उस टाइम तक इस मॉडल को समझना मुश्किल होगा। Though I have discussed persuasion in detail in 3 different videos, और इसके अलावा भी जो है परसुएशन की और वीडियोस भी, जैसे इनॉकुलेशन थ्योरी है और भी मैं साथ साथ चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ परसुएशन पर। बट लेट मी रीहैश अ लिटिल बिट रिगार्डिंग परसुएशन एंड देन वी विल बी फोकसिंग ऑन आवर टुडेज टॉपिक। परसुएशन की जब बात करते हैं तो परसुएशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन्स एटीट्यूड, बिलीफ, ओपिनियन और बिहेवियर इज विदाउट ड्यूरेस इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिकेशन। या इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो है परसुएशन का वो है विदाउट ड्यूरेस, कि ज़ोर ज़बरदस्ती के बगैर कम्युनिकेशन के ज़रिए जब आप किसी के एटीट्यूड, किसी के बिहेवियर, किसी के थिंकिंग, किसी की बिलीफ को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ परसुएशन। सो वी कैन से दैट परसुएशन इज़ द कम्युनिकेशन टू इन्फ्लुएंस चॉइसेस, and we use the art of persuasion to sell ideas, concepts and products, etc. This was a little bit regarding persuasion. Now let's discuss our today's topic, and that is what is elaboration in the elaboration likelihood model. तो जब हम elaboration की बात करते हैं या elaboration likelihood model की बात करते हैं तो basically most people living in the contemporary society are bombarded by mass media messages, and many of them attempt to persuade them of something. We all know this, okay? Now in this contemporary world we are being bombarded by a lot of messages, lot of information from around the globe. पूरी दुनिया से हमारे पास information आ रही होती है, और of course most of the information, most of the messages, they try to persuade the people, they try to persuade the audience. So it is obviously impossible for a receiver to deal with all these messages at great length. तो सारे मैसेजेस को डिटेल में डिस्कस करना, समझना, उसको एलैबोरेट करना, जो या उसकी बहुत ज़्यादा उसमें थिंकिंग या कॉग्निटिव वर्क करना, दैट्स नॉट पॉसिबल। होता क्या है कि typically we select some messages for detailed examination and deal with others in a more parametric fashion. A model of persuasion that acknowledges these two different means of processing the messages is the elaboration likelihood model, which was developed by Petty and Cacioppo in 1986. तो ये जो दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं इंफॉर्मेशन की, और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा आप कॉग्निटिव वर्क नहीं करते, जबकि सिर्फ आप एक यूँ समझ लें कि इंस्टेंटली उस पर कोई डिसीजन करते हैं पैरामीट्री फैशन में। तो उसको ये दो जो वेज हैं ऑफ परसुएशन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना हमें बेस्ट वे जो है वो हमें एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल हमें प्रोवाइड करता है, वो एक इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देता है। सो इट इज़ अ मॉडल ऑफ हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड एंड चेंज्ड। द मॉडल डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू रूट्स टू परसुएशन। कौन कौन से वो रूट्स हैं? पहला है the central route and the second one is the peripheral route. Elaboration likelihood model is based on the elaboration continuum, which ranges from low elaboration means low thought to high elaboration means high thought. So elaboration को अगर simply एक लफ्ज में एक्सप्लेन करना मैं चाहूँ तो elaboration का मतलब है thought process, thinking process, cognitive work, कितना आप उसको उसके जो आर्गुमेंट्स हैं उसको आप एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेशन या परसुएसिव कम्युनिकेशन आप तक आ रही है। सो एलैबोरेशन रेफर्स टू द कॉग्निटिव वर्क involved in processing a persuasive message. Elaboration involves attending carefully to the persuasive appeals, attempting to access relevant information from memory or the external sources.
scrutinizing and making inferences about the arguments, drawing conclusions about the merits of the arguments, and reaching an overall evaluation of the recommended position. So persuasion can take place under either a high degree of elaboration or a low degree of elaboration or any point in between. जो persuasion है वो high elaboration पर भी हो सकती है या lower elaboration भी हो सकती है. मतलब high thought process में भी हो सकती है कि एक आपका रिसीवर है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है और वो बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव वर्क करता है, उस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, उसकी बहुत ज़्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व है, और जैसे कि पेरिफेरल रूट कहता है कि जिसमें लो एलैबोरेशन या लो थॉट इन्वॉल्व होती है, वहां पर भी आपकी परसुएशन हो सकती है, या इन बिटवीन इन दोनों के दरमियान भी कहीं पर परसुएसिव कम्युनिकेशन या परसुएशन जो है वो कंप्लीट हो सकती है. अकॉर्डिंग टू ओकीफ 1992 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ एलैबोरेशन बाय अ रिसीवर. दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एलैबोरेशन से रिलेटेड. जब हम एलैबोरेशन की बात करते हैं कि अगर खासकर जो हाई एलैबोरेशन है, हाई थॉट की बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और वो कौन से हैं? नंबर वन इज द रिसीवर्स मोटिवेशन टू एंगेज इन एलैबोरेशन. किस हद तक एक रिसीवर जो है वो मोटिवेटेड है टू एंगेज इन द एलैबोरेशन, कि वो जो है वो एक मैसेज उस तक आया है, कोई कम्युनिकेशन आई है परसुएसिव, और वो कितना उस पर अपनी कॉग्निटिव वर्क करना चाहता है, कितना वो मोटिवेटेड है. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हिज और हर एबिलिटी टू एंगेज इन एलैबोरेशन. और एक तो उसकी मोटिवेशन, सेकंड ये कि वेदर दैट इंडिविजुअल, दैट रिसीवर इज एबल टू डू सम कॉग्निटिव वर्क ऑन दैट. क्योंकि जब हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स की बात करते हैं तो आपकी जो सारी ऑडियंस है उनके जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल, उनकी एजुकेशन, नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये सारी इक्वल नहीं होती. देयर आर लॉट डिफरेंसेस अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी. तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट फिर वहाँ आ जाती है कि एक तो ये कि मोटिवेशन, देयर शुड बी द मोटिवेशन फॉर हाई एलैबोरेशन, और सेकंड is the ability of the receiver, उसकी ability कितनी है to engage in the elaboration. Here another very important aspect is that it may be the case that high credibility source will lead to attitude change in one situation but not in another situation if attitude change is taking place through the peripheral route in one situation and central route in the other. अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खासकर जब हम सोर्स क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि जब परसुएशन की बात करते हैं तो परसुएशन पे वी ऑलरेडी डिस्कस द कार्ल हॉवलैंड ने जब अपनी रिसर्चेस की थी, हॉवलैंड आर्मी रिसर्च, और उसके बाद जब येल कम्युनिकेशन रिसर्च प्रोग्राम था तो उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस था दैट वाज ऑन सोर्स क्रेडिबिलिटी. अब सोर्स क्रेडिबिलिटी पेरिफेरल रूट पे तो शायद जो है वो आपको जो समझ ले कि आपको वर्केबल है पेरिफेरल रूट में, लेकिन अगर एक सेंट्रल रूट में एक एलैबोरेशन हो रही है, एक आपका रिसीवर है वो सेंट्रल रूट यूज़ कर रहा है और उसकी हाई एलैबोरेशन पे जा रहा है, तो वहाँ हो सकता है कि उसकी जो परसुएशन है या उसका एटीट्यूड चेंज है वो उसका रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल रूट, तो सेंट्रल रूट प्रोसेसेस रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट और हाई एलैबोरेशन. सेंट्रल रूट में हाई एलैबोरेशन या हाई थॉट या हाई कॉग्निटिव वर्क जो है वो इन्वॉल्व होता है, और इसी तरह इट इन्वॉल्व्स केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द परसुएसिव कम्युनिकेशन. जो भी आपकी कम्युनिकेशन आ रही है, जो एक परसुएसिव मैसेज आ रहा है, उसका केयरफुल स्क्रूटनाइजिंग होती है उसमें सेंट्रल रूट में. एंड व्हेन द सेंट्रल रूट टू परसुएशन इज एक्टिव, द रिसीवर इज सेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन हाई एलैबोरेशन. सेंट्रल रूट टू परसुएशन जो है वो एक्टिव है अगर, तो इसका मतलब है कि जो रिसीवर है वो हाई एलैबोरेशन में इन्वॉल्व है, या वो उसकी जो थिंकिंग है या थॉट प्रोसेस है वो हाईली इन्वॉल्व है. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरिफेरल रूट, तो पेरिफेरल रूट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन द रिसीवर डजंट एक्सपेंड द कॉग्निटिव एनर्जी टू एवेल्युएट द आर्गुमेंट्स इन मैसेजेस एंड इज गाइडेड मोर बाय द पेरिफेरल क्यूज. और ये पेरिफेरल क्यूज क्या होते हैं? दीज क्यूज कैन इंक्लूड सोर्स क्रेडिबिलिटी, जैसे कि पहले मैंने बात की, इसी तरह द स्टाइल एंड द फॉर्मेट ऑफ द मैसेज एंड द मूड ऑफ द रिसीवर एंड सो फोर्थ. इस तरह और बहुत सारे पेरिफेरल क्यूज हैं. इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द पेरिफेरल रूट टू परसुएशन. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द पेरिफेरल रूट, एंड दैट इज व्हेन द पेरिफेरल रूट to persuasion is active,
द रिसीवर इज सेड टू बी इन्वॉल्व इन लो एलैबोरेशन, मतलब कि लो थॉट है। जहां पर जब पेरिफेरल रूट एक्टिव होगा तो वहां पर जो रिसीवर है वो लो थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, वो बहुत ज़्यादा सोचे समझेगा नहीं, गौर फिक्र नहीं करेगा, उसका आर्गूमेंट जो है उसको रैशनली उसको एनालाइज नहीं करेगा। दैट इज द डिफरेंस बेसिकली। ये एलैबोरेशन है। एलैबोरेशन इज सिंपली द थॉट प्रोसेस, द कॉग्निटिव वर्क, किस हद तक एक आर्गूमेंट को आप एक पर्सुएसिव कम्युनिकेशन को आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके आर्गूमेंट्स को, उसके जो दलाइल उसमें पेश किए जा रहे हैं उसको आप उसका एनालिसिस करते हैं और उसको आप देखते हैं, जांचते हैं, पड़ताल करते हैं उसके, और किस हद तक आप सरसरी बस आप जब उसकी पैकेजिंग, उसकी सोर्स क्रेडिबिलिटी को देखते हुए, उसकी ज़ाहिरी जो इसकी एक प्रेजेंटेशन है उसको देखकर आप अपनी एटीट्यूड में चेंज तब्दीली ला रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली द डिफरेंस ऑफ एलैबोरेशन एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एलैबोरेशन कंटिन्यूम which is the soul of the elaboration likelihood model of persuasion. So this was all regarding what is elaboration in the ELM model. I hope you people have caught it. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe it right now. Also press the bell icon ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस या जो भी हमारे डिस्कशंस हैं वो आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।